গুড ইভিনিং। নমস্কার স্যার, আমাদের আজকের মুখ্য আলোচক অলরেডি জয়েন করেছেন ডক্টর উমাকান্ত সিং স্যার এবং আমাদের সাথে ইতিমধ্যেই যুক্ত হয়েছেন আলাপনের পূর্ববর্তী পর্বের মুখ্য আলোচকেরা। মৃত্যুঞ্জয় স্যারের পারমিশনই শুরু হলো। আচ্ছা আচ্ছা, নমস্কার। গুড ইভিনিং এভরিবডি। নমস্কার। নমস্কার। সুস্থ দেশ সুস্থ মন, এই আজ আমরা সকলেই ৫৬তম পর্বের অর্থাৎ 56th এপিসোডে হাজির হয়েছি, উপস্থিত হয়েছি আরও একটি সুন্দর সন্ধ্যায় শারীর শিক্ষা তথা ক্রীড়া বিজ্ঞান জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্রদের সমাবেশে, এবং সেই সঙ্গে আমাদের আগামী প্রজন্মের শারীর শিক্ষাবিদরাও আছেন। সকলকে সাথে নিয়ে আজ আমরা আলাপনের ৫৬তম পর্ব শুরু করতে চলেছি। ইতিমধ্যেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন আজ ৫৬তম পর্বের মুখ্য আলোচক ডক্টর উমাকান্ত সিং স্যার। আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের সম্মানীয় অধ্যক্ষ প্রফেসর ডক্টর দেবপ্রসাদ সাহু স্যার, এবং আমাদের সঙ্গে আছেন আমাদের একদম আলাপনের শুরুর প্রথম পর্বের মুখ্য আলোচক অধ্যাপক অলোক ব্যানার্জি স্যার সহ আলাপনের পূর্ববর্তী পর্বের বিশিষ্ট মুখ্য আলোচকেরা। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য আছেন ডক্টর সুব্রত মল্লিক স্যার, ডক্টর সৈকত চ্যাটার্জি স্যার সহ একাধিক বিদ্বজনেরা আছেন। সকলকেই যথাযোগ্য শ্রদ্ধা সম্মান জানিয়ে আমি একদম শুরুতেই আমাদের মহাবিদ্যালয়ের সম্মানীয় অধ্যক্ষ ডক্টর দেবপ্রসাদ সাহু স্যারকে অনুরোধ করব আজকের এই পর্বে স্বাগত ভাষণ রাখার জন্য। নমস্কার স্যার। নমস্কার। গুড ইভিনিং এভরিবডি। শুভ সন্ধ্যা। পশ্চিমবাংলার প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় অবস্থিত আমাদের এই ঝাড়গ্রাম জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকায় সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়, এই সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের ফিজিক্যাল এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের কিছু নবীন প্রজন্মের শিক্ষক ডক্টর কেশবচন্দ্র গোপ, ডক্টর মৃত্যুঞ্জয় দাস, ডক্টর মৃত্যু দত্তা, ডক্টর অলোক সেন বর্মন সহ কিছু নবীন প্রজন্মের টিচার শিক্ষকের উদ্যোগে সুস্থ দেহে সুস্থ মন এই নিয়ে আলাপন, এরকম একটা 100 লেকচার সিরিজ ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ফিজিক্যাল এডুকেশন এবং স্পোর্টস নট অনলি ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল, অল ওভার ইন্ডিয়া আমরা এটা শুরু করেছি, যার আজকে 56তম এপিসোড। এই আজকের এই এপিসোডে আলাপনের পূর্ববর্তী বক্তা যারা ছিলেন, যারা আলাপনকে তাদের নিজস্ব জ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ করেছেন, তাদের সবাইকেই মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে স্বাগত জানাচ্ছি। তাদের মধ্যে আজকে দিন আমরা দেখতে পাচ্ছি ডক্টর সুব্রত মল্লিক স্যার, যার খ্যাতি সারা পশ্চিমবাংলা নয়, তারা ভারতবর্ষে অ্যাজ এ স্পোর্টস সায়েন্টিস্ট হিসাবে ছড়িয়ে আছে। উপস্থিত আছেন পূর্ববর্তী আলোচক, পূর্ববর্তী বক্তা ডক্টর প্রফেসর অলোক ব্যানার্জি মহাশয়, সৈকত চ্যাটার্জি সহ যারা আলাপনকে সমৃদ্ধ করেছেন। মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি, যাদের জন্য আলাপন সেই শারীর শিক্ষার শিক্ষার্থী। মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সবাইকেই স্বাগত জানাচ্ছি। I heartily welcome Dr. Umakanta Singh. He is working as a sports officer of Government Girls College, Madhya Pradesh. Today his lecture is role of coordinative ability in sports. মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে বিশেষভাবে ওনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। বক্তব্য দীর্ঘায়িত না করে ওনার বক্তব্য আমরা শোনার জন্য অপেক্ষায় আছি। আলাপনকে সমৃদ্ধ করবে, যেটা আমরা খুশি হব, আমরা সমৃদ্ধ হব। নমস্কার সবাইকে। আবার আলাপনের পক্ষ থেকে, মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সবাইকেই স্বাগত জানাচ্ছি। নমস্কার। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। আপনাকে আন্তরিকভাবে শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানাই যে আপনি শত ব্যস্ততার সত্ত্বেও আজকে আমরা সবাই জানি, আমরা যারা মহাবিদ্যালয়ে ছিলাম, আপনি কতটা ব্যস্ত ছিলেন তার সত্ত্বেও যুক্ত হয়েছেন এবং স্বাগত ভাষণ রেখেছেন এবং আমাদের সকলকে অনুপ্রাণিত করেছেন। অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি আমাদের মহাবিদ্যালয়ের পরবর্তীতে আমাদের আজকের মুখ্য আলোচক ডক্টর উমাকান্ত সিং মহাশয়ের সঙ্গে সকলের সাথে পরিচিত করানোর জন্য আমাদের মহাবিদ্যালয়ের সম্মানীয় অধ্যাপক
ডক্টর অলোক সেন বর্মন মহাশয়কে অনুরোধ করছি টু ইন্ট্রোডিউস আওয়ার টুডে স্পিকার। ডক্টর বর্মন স্যার, প্লিজ। Good evening, everybody. Welcome all in the 56th episode of the Alapan. We have gotten between us the Dr. Umakant Singh, the young and enthusiastic sports officer. He is working in the Government Girls College, Vaidhan. He was done the PhD from LNIP Gwalior. He has the basketball coaching diploma from Leipzig University. He has the FIBA level 2 coaching license. He has done the Master in Olympic Studies from the German Sports University, Cologne. He has too much talent in the coaching. 3 times first position senior basketball women champion. Under his coaching, he gotten the bronze medal in the Khelo India Women. In the coaching ship of him, he gotten the West Zone Inter University Championship in 2014. He has so many participation professional career in the ITK Sports Ambassador from the India in Germany, Union Speaker in the South and East Asia for ITK Leipzig, Germany. He visited more than 23 countries and brought members of international Kubatin associations, Lausanne, Switzerland, and it is the body of the IOC. He is the executive member of the Indian Council Association, and he has lot of papers, publications. So many times I have gotten in the Gwalior in any type of the convention, any type of the international conference, in seminar, in so many type of work he has done. He has lot of papers he has published in the PubMed journal, and he has a tremendous enthusiasm in coaching. Such a great person we have gotten with us. We are grateful to him, and we are welcome him, Sir Dr. Umakant Singh, with her spacious speech between us. We think his speech will be most effective in our study. Our students will be enriched themselves by the speech of Umakant ji. Again, I welcome all of you in this lecture. Dr. Umakant Singh ji is the prominent in the coaching, especially in the women basketball team. That's why we should come forward with him to enrich our women team in India level. Welcome, sir. Over to Dr. Umakant Singh ji. Thank you, Alok sir, or thank you to everyone present for this wonderful evening. I'd say a very thanks to the principal of the college who has taken this lead for such a programs, and all the senior member from the faculty. I can see Dr. S. Malik sir and the Vice Chancellor sir and all the seniors and all the students. So my name is Dr. Umakant Singh, और टुडे वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। तो हम लोग आज बात करेंगे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज पे। तो जो टॉपिक ज़्यादा एक सेकंड, मैं प्रेजेंटेशन को एक बार शेयर के मोड पे ले आता हूँ मैं। और
आप थोड़ा हेल्प करेंगे मुझे, क्योंकि ज़्यादा मैं जूम इस्तेमाल करता हूँ और गूगल मीट भी ज़्यादा काम नहीं किया मैंने। सर लेफ्ट साइड से फिर जो प्रेजेंट नाउ ऑप्शन है ना सर, एरो नहीं, करके। उसमें चला गया, एरो पे चला गया मैं, ठीक है। अच्छा अच्छा। और उसके मेरे बाद सर डेस्कटॉप पे, आप एंटायर स्क्रीन पे सिलेक्ट कर कीजिए सर, एंटायर स्क्रीन ऑप्शन। हाँ ठीक है। उसके बाद डिस्प्ले को सिलेक्ट कीजिए, एंटायर स्क्रीन जो डिस्प्ले आ रहा है वहाँ पे, ठीक है। देन शेयर सर। ओके, पहले प्रेजेंटेशन पे तो मैं आऊँ, क्योंकि ये आ रहा है सर, आ रहा हाँ है सर। आ रहा है। नीचे। हाँ, हाँ नीचे ये हाइड इंक्रीज। ओके, प्रेजेंटेशन आपको दिख रहा है? नहीं सर अभी तो चला गया। वो इग्नोर कर दीजिए ऊपर वाला। हाँ सर। अभी आ रहा हाँ, है? नीचे नीचे हाइड वाला बटन। हाईलाइट। नहीं हाइड नहीं, जो हाइड। स्टॉप शेयरिंग ऑप्शन है ना सर, उसके ओके, बगल में हाइड ऑप्शन है। थैंक यू सर। आ गया हो सही? गया, हो गया, हाँ हो गया हाँ हो सर। गया। ओके, अभी स्क्रीन को ये थोड़ा जो बड़ा भी, कर। हाँ स्क्रीन बड़ा कर रहा हूँ मैं। ओके, सो वंस अगेन हो गया, हो गया। वेलकम टू ऑल। ज़्यादा काम मैंने जूम पे किया है, तो गूगल मीट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। सो पहले ये जो आज का जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा क्यों लिया, ये रीज़न भी जानना जरूरी है। मैंने अपना जो करियर देखा है, ज़्यादा लंबा करियर नहीं, लेकिन फिर भी एज ए प्लेयर, एज ए प्रोफेशनल पी टीचर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एज ए कोच, या एज ए नाउ जो काम कर रहा हूँ ओलंपिक स्टडीज़ के साथ, तो मैंने जो अपना लाइफ सर्कल जो जर्नी अभी तक फील किया है या ट्रेवल किया है, तो जो बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो मुझे लगा वो लगा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। तो जब मेरे पास कॉल आया था कि किस टॉपिक के ऊपर लेना है, तो मैं विदाउट एनी कंफ्यूजन मैंने बोला कि मुझे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़ पे बताना चाहिए बच्चों को, क्योंकि जो बैचलर्स के स्टूडेंट्स हो या फिर मास्टर के स्टूडेंट हो, क्योंकि इस फील्ड के बाद आप जैसे आप आगे जाओगे, आगे जाने के बाद जब आप फील्ड में काम करोगे, तो आपके पास क्या डिग्री है ये ज़्यादा सेकेंडरी मैटर करेगा। मैटर करेगा कि आप स्कूल में, कॉलेजेस में, क्लब में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में आप कैसा परफॉर्म करते हो, या आप कैसे अपने ट्रेनिंग सिस्टम से या अपने वर्कआउट सेशन से आप कैसे जो आपके पास जो बच्चे होंगे उससे आप परफॉर्म करवाते हो। ये जो प्रेजेंटेशन है इसका इंपॉर्टेंस ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नंबर वन। नंबर टू, इससे परफॉर्मेंस में जबरदस्त डिफ्रेंशिएशन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब मैं यूरोप में रहा और जब मैं इंडिया में रहा, तो मैंने ये चीज फील किया कि वहाँ की जो ट्रेनिंग सिस्टम है और जो अपने इंडियन की ट्रेनिंग सिस्टम है, हम लोग बराबर मेहनत करते हैं, वी डू लॉट ऑफ वर्क, मेहनत करने में कोई कमी नहीं करते हैं, बट हम लोग का जो डायरेक्शन है ना और जो प्लानिंग है वो थोड़ा सा वेरी करता है उनके हिसाब से। वहां जाके जब क्लब्स में काम कर रहे थे, तो ये देखा मैंने कि ऐसा क्या है कि जितना 4 आवर्स या एक वीक्स में 12 आवर्स जो हमारे किड्स मेहनत करते हैं या उनके किड्स मेहनत करते हैं, क्या वेरी करता है। हो सकता है थोड़ा मोड़ा वेरी कर सकता होगा उनका बॉडी टाइप, लेकिन ट्रेनिंग मेथड्स में क्या डिफरेंट है। तो ये मैंने पाया कि उनका जो ट्रेनिंग सिस्टम था, तो उसमें वो लोग ज़्यादा न्यूरॉन सिस्टम पे काम करते थे अर्ली एज एबिलिटीज़ में। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो हम लोग जब टीम बनाते हैं, कोई भी चीज़ करते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा वर्कआउट कराते हैं, स्पीड, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, ये सब कुछ करवाते हैं और ज़रूरी भी है। लेकिन हम लोग किस चीज़ को मिस करते हैं, वो है आपका नर्वस सिस्टम की ट्रेनिंग सिस्टम को। सो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ये कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज क्या है, क्यों जरूरी है, कैसे करना है, कब करना है और कितना करना है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग जानेंगे। तो जो फर्स्ट स्लाइड है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं कि एज ए कोच, एज ए पी टीचर, आपके पास एक टीम दिया गया है, ठीक है। तो टीम जब दिया गया है, तो टीम से आपसे एक्सपेक्टेशन जो होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ये होगी कि आपका टीम परफॉर्म करे। तो जब टीम परफॉर्म करे, तो उसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। अपने पास जो पेज ये मैंने आपको शो आउट करा हूँ, ये पेज में मोस्टली टीम गेम्स के बारे में बात हो रहा है। टीम गेम्स, जैसे एग्जांपल मैं लेता हूँ बास्केटबॉल से। बास्केटबॉल एक टीम गेम है। अब उसका परफॉर्मेंस फैक्टर्स को अगर हम लोग क्लासीफाई करेंगे बड़े सिंपल टर्म्स में, इन वेरी सिंपल टर्म्स, तो पहला पॉइंट, जो पहला फैक्टर जो उसके परफॉर्मेंस को हिट करता है, वो करता है मोरल और साइकोलॉजी ऑफ ए इंडिविजुअल। जैसे आप ट्रेनिंग देते हो बच्चों को,
तो सबसे पहले ये जरूरी नहीं कि उसको स्किल सिखाए, नहीं, सबसे पहले उनके साइकोलॉजी पे काम करना है, उसके मोरल वैल्यूज पे काम करना है, उसके इथिक्स पे काम करना है, उसके कॉन्फिडेंस पे काम करना है, उसके डिसिप्लिन पे काम करना है, उसके एंजाइटी पे काम करना है। तो ये जो साइकोलॉजिकल फैक्टर है जो परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर का, ये कब करना है ये इंपॉर्टेंट है। सबसे जो बेस्ट एज होता है ट्रेनिंग के लिए वो एज होता है जब किड्स जो है, गर्ल्स और बॉयज, बिफोर प्यूबर्टी, इट मीन्स बिफोर 11.5 ईयर्स या 12 ईयर्स से पहले अगर उसको हम ट्रेन करते हैं, मीन्स एट द एज ऑफ 8, 9, 10, 11, ये 2-3 साल जब ट्रेन करते हो वो बेस्ट एज होता है ट्रेनिंग के लिए, और सबसे सही होता है टाइम होता है साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए। इस एज में इंपॉर्टेंट ये है कि आप बच्चों को ज़्यादा ये बताओ कि हाउ टू बी पंचुअल, हाउ टू बी रेस्पेक्टफुल, हाउ टू बी ओबीडियंट, you should be a good follower, how to talk with the teammates, how to talk, ये सारी चीजें आप उनको इस पार्ट पे डालना है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप, ये जो एज को हिट करना है। ये हो गया पहला फैक्टर। जो सेकंड फैक्टर है आपके टीम गेम्स का वो है टेक्निक और टैक्टिस, ठीक है। सो टेक्निक और टैक्टिस में इस सब्जेक्ट चूंकि बैचलर्स के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स के हैं, तो सारे स्टूडेंट्स को ये बड़ा क्लियर होना चाहिए टेक्निक क्या होता है। किसी भी स्किल को परफॉर्म जब करते हैं, किसी भी स्किल को हम परफॉर्म करते हैं उसको हम टेक्निक बोलते हैं, ठीक है। जैसे बास्केटबॉल का शूटिंग, तो बास्केटबॉल का शूटिंग एक स्किल है, उसको शूट को करने का जो तरीका है जो मैं फॉलो कर रहा हूँ वो मेरा टेक्निक है। और सेकंड है टैक्टिकल फैक्टर, आपको स्किल्स आपने जान लिया है, उस स्किल का इस्तेमाल कब करना है और कैसे करना है, दैट इज कॉल्ड टैक्टिस। एग्जाम्पल, मैंने बास्केटबॉल में शूटिंग एक स्किल है, तो शूट किस तरह किया जाए डिपेंड अपॉन द टेक्निक। टेक्निक क्या है, जहां मुझे मैक्सिमम एडवांटेज मिले कम इनपुट लगा के। टैक्टिस क्या है, इस बास्केटबॉल स्किल जो शूटिंग का जो स्किल है उसका इस्तेमाल गेम की किस पार्ट पे करना है, रिंग के पास जाके करना है, ये कब करना है, इज कॉल्ड टैक्टिकल पार्ट। सो इंपॉर्टेंट क्या है, परफॉर्मेंस फैक्टर पहला है आपका साइकोलॉजी, देन सेकंड इज टेक्निक एंड टैक्टिस, थर्ड एस्पेक्ट है वो है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, एंड फोर्थ एस्पेक्ट है वो है कंडीशनिंग या कंडीशनल फैक्टर। सो नंबर 3 और नंबर 4 है, उसमें बड़ा डिफरेंस को समझना है कि 3 and 4 कंप्लीट डिपेंड अपॉन योर बॉडी, आपके शरीर पर डिपेंड करता है। जो नंबर 3 है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, इसको हम इंफॉर्मेशन सिस्टम भी बोल सकते हैं, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक नर्वस सिस्टम की ट्रेनिंग को बोल सकते हैं कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। और जो नंबर 4 है दैट इज कॉल्ड कंडीशनल एबिलिटीज। कंडीशनल एबिलिटीज में क्या होता है, जहां आपका एनर्जी सिस्टम यूज होता है। एनर्जी सिस्टम का मतलब है जहां एनर्जी कंज्यूम होता है, कैलोरीज बर्न होता है, दैट इज कॉल्ड स्पीड, स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस। सो आपका जो बॉडी है उसका 2 पार्ट करना है, एक का नाम रहेगा कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज और एक का नाम रहेगा कंडीशनिंग या कंडीशनल एबिलिटीज। तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के को हम समझ सकते हैं कि उसको इंफॉर्मेशन ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं, न्यूरॉन सिस्टम ट्रेनिंग भी बोल सकते हैं, या आपका ब्रेन का फंक्शनिंग भी बोल सकते हैं। और जो इधर आएगा स्पीड, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस, इसको हम एनर्जी सिस्टम भी बोल सकते हैं, हार्ट का वर्कआउट भी बोल सकते हैं। ये 2 पार्ट पे है। यूजुअली क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा फोकस जैसे कोच करते हैं वो फोकस करते हैं अपने कंडीशनल एबिलिटीज के ऊपर, स्पीड, स्ट्रेंथ, इंड्योरेंस का, और हम लोग इग्नोर करते हैं अपने नर्वस सिस्टम्स के ट्रेनिंग को। सो दैट इज नॉट ए राइट वे ऑफ ट्रेनिंग, बिकॉज जब बच्चा ग्रो अप कर रहा होता है, जब बच्चा छोटा से बड़ा हो रहा होता है, तो उसकी जो हार्ट की साइज होती है वो भी छोटी होती है। सो जब हार्ट का साइज छोटा होता है तो छोटे साइज में अगर ज़्यादा लोड दोगे वर्कआउट करा के, वो जल्दी जल्दी थकते हैं। दैट्स व्हाई यू कैन सी दैट जो आप उसको वर्कआउट कराओगे वो 5-7 मिनट के बाद वो बैठ जाता है, थोड़ा रेस्ट करता है, देन अगेन ही कैन गो, बिकॉज इसका जो हार्ट का साइज है वो छोटा होता है। आपको क्या करना है, आपको अपने एनर्जी सिस्टम के वर्कआउट के साथ साथ आपके उसके ब्रेन सिस्टम पे यानी उसके न्यूरॉन सिस्टम पे भी काम करना है। आप ये देखना कि जब छोटा बच्चा बर्थ लेता है उसका सर बड़ा होता है और शरीर छोटा होता है, और सबसे पहला डेवलपमेंट उसके ब्रेन का होता है एंड देन उसके बॉडी का होता है। सो नेचर भी पहले नर्वस सिस्टम को डेवलप करते हैं एंड देन ग्रेजुअली डेवलप करते हैं आपके एनर्जी सिस्टम को। सो हम लोग कुछ ट्रेनिंग मेथड पे ध्यान देना है।
एंड द लास्ट पार्ट वो है आपका बॉडी फैक्टर्स लाइक योर बॉडी हाइट, वेट, योर आर्म साइज, प्रोपोर्शन, मसल फाइबर, दैट इज कॉल्ड. सो इन नट सेल इस फर्स्ट स्लाइड को अगर हम लोग कंक्लूड करें तो ये फर्स्ट स्लाइड में बताया जा रहा है कि व्हाट आर द फैक्टर्स which affect the performance, particularly in team games. So psychology, technique and tactics, your information system, your energy system and your body factor. So फर्स्ट स्लाइड का जो टस्क है वो ये है कि आपको ये समझना है कि आप छोटे बच्चों के साथ डील कर रहे हो तो उसका ब्रेन का साइज, जिसका हेड का साइज जो देखना वो बड़ा होता है, और जैसे इसका उनका एज ग्रो करता है 5 ईयर 6 ईयर तो साइज जो होता है बॉडी और हेड वो एक प्रोपोर्शनेट अमाउंट में आता है. नेक्स्ट स्लाइड में लोग ये जानेंगे इसमें. सो लास्ट स्लाइड से हमने क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट निकाला, इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी नर्वस सिस्टम का ट्रेनिंग. So topic is coordinative abilities. Then let us know what is called coordinative abilities, why it is important, when to train for these abilities, how to train. So ये कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट को समझना है क्या है, क्यों है, कब करना है, कैसे करना है, देन आपका एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग रहेगा कोचिंग सिस्टम के ऊपर. और बिलीव मी, मैंने इस सिस्टम का इस्तेमाल करके हमने पाया है कि अपने सारे टीम्स के ऊपर परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है. मैंने जितने भी जर्नी अपनी कोचिंग हिस्ट्री की है तो मैं अपनी ट्रेनिंग में इसको जरूर इंक्लूड करता हूँ, क्योंकि एक थ्योरेटिकल चीज़ होता है और एक प्रैक्टिकल चीज़ होता है. जब मैंने इसका इस्तेमाल करके देखा तो रियली में टीम का परफॉर्मेंस बढ़ा है. एक छोटा सा एग्जांपल और है, जैसे आप बात करते हैं फुटबॉल, मेसी. सो यू कैन सी कि मेसी बाकियों से अलग क्यों है, जबकि इसका बॉडी का साइज भी छोटा है. सिर्फ स्पीड एक फैक्टर नहीं है क्यों मेसी सबसे अलग है, उसका सेंस मींस ग्राउंड. जब व्हेन ही रन फॉर द गोल, जब बॉल के साथ वो भागता है या बॉल को पास रिसीव करने भागता है कोर्ट के ऊपर, सो ही नोज वेयर ही इज स्टैंडिंग, वेयर ही इज रनिंग, उसके सराउंडिंग में कौन कौन है, कब पास लेना है, कब पास देना है. सो ये जो उसका कैनेस्थेटिक सेंस है ना, वो उसके नर्वस सिस्टम की वजह से है. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. सो इज अ सिंपल मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज, like it involves the integration of sensory information, motor control and muscular coordination to execute movement accurately and skillfully. So जो आपका coordinative abilities है, इसमें आपका जो सबसे important point है वो है आपका sensory system. Sensory system का मतलब होता है न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स का मतलब होता है, जब आपको पता है कि बॉडी में दो टाइप के नर्व्स होते हैं, एफरेंट, इफरेंट. ओके, सो एफरेंट इफरेंट नर्व मतलब हम लोग कोई भी चीज़ देखते हैं या ऑब्जर्व करते हैं या फील करते हैं तो हम लोग एफरेंट नर्व्स के थ्रू अपने ब्रेन को मैसेज देते हैं, और ब्रेन इफरेंट के थ्रू वो मैसेज रिप्लाई बैक टू मसल्स को देता है. मसल्स आपने पढ़ा होगा अपने एनाटॉमी के, मसल्स में वहाँ एक मोटर यूनिट पॉइंट भी होता है. मसल्स क्या करते हैं कि मसल्स फाइबर्स को मैसेज करते हैं और वो किसी मूवमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है, तो जब मूवमेंट को एग्जीक्यूट करते हैं इट डिपेंड अपॉन डिफरेंट गेम्स, किस गेम का क्या स्किल है और किस टाइप का मूवमेंट एग्जीक्यूशन का डिमांड उस गेम में है. सो जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज है वो कंट्रोल करता है आपके मोटर न्यूरॉन्स को, आपके मस्कुलर कोऑर्डिनेशन को, ताकि आप अच्छे और एक्यूरेटली तरह से मूवमेंट को एग्जीक्यूट कर पाए. सो ये सिंपल कुछ कंपोनेंट्स है जिसको आप जानते भी होंगे. पहले जानते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. पहला कंपोनेंट है ओरिएंटेशन. ये ओरिएंटेशन क्या है? ओरिएंटेशन को हम लोग काइनेस्थेटिक सेंस भी एक तरह से कह सकते हैं. ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आप जब कोई गेम परफॉर्म कर रहे हो, आप कोर्ट के किस पार्ट पे खड़े हो, ठीक है, बिना देखे, विदाउट विजुअल आपको एक फीलिंग होना चाहिए कि आपके टीममेट्स किधर है, आपके ओपोनेंट्स किधर है. और आप जब रन करते हो तो आपको फील होना चाहिए कि मेरे आसपास का मूवमेंट, सराउंडिंग क्या है. जब आपको सराउंडिंग का सेंस अच्छे से होगा देन यू कैन हैव ए बेटर डिसीजन. एग्जांपल बास्केटबॉल का. बास्केटबॉल में आप देखना कि एक पोस्ट प्लेयर होता है जो रिंग के नीचे खेलता है. सो वो व्हेन ही रिसीव द बॉल, वो जब बॉल को रिसीव करता है उसके पीछे एक डिफेंस होता है. तो डिफेंस उसको अपने हाथ से पुश कर रहा होता है. तो जो अटैकर होता है विद द बॉल, वो क्या करता है, अपने ओपोनेंट के बॉडी के फील से वो एहसास कर लेता है
कि उसका फोर्स किस तरफ ज्यादा है और किस तरफ कम है, इस वे से वो मूवमेंट को एग्जीक्यूट कर लेता है। तो इसी तरह का सेंस जो होता है, सचिन तेंदुलकर आप देखना वो कभी पावरफुल शॉट्स नहीं मारता था जब वो क्रिकेट खेलता था, वाइज ए क्लास प्लेयर ही डोंट गो फॉर पावरफुल शॉट्स, वो बॉल को प्लेस करता था। तो प्लेस कब करता है, जब आपके पास अच्छा सेंस हो कि जो बॉलर आ रहा है, जो बॉल्स डाल रहा है, तो वो बॉल किस तरफ जाएगा, ये प्रिडिक्शन, ये सेंस, ये थॉट, ये आपका ओरिएंटेशन के ऊपर काम करता है। सेकेंड स्किल है इसमें कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब है आप एक साथ दो मूवमेंट्स करना। जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि बहुत जगह जो मैजिशियंस होते हैं या कोई शोज में होता है, वो जगलिंग करते हैं बॉल को, एक साथ 2 बॉल 3 बॉल को जगल करते हैं। तो आप भी करके देखना अगर कभी मौका लगे। आप एक बॉल से कोई दिक्कत नहीं है, 2 बॉल से करोगे चल लेगा, पर जैसे ही थर्ड बॉल ऐड करोगे तो जगल, यू विल फाइंड लिटिल बिट ऑफ लाइक डिफिकल्टीज, बट जब आप उसको प्रैक्टिस करोगे तो आप उस स्किल को एक्वायर कर लोगे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो ट्रेन हो चुके होते हैं कि हाउ टू जगल द बॉल। सो यहाँ कॉम्बिनेशन का मतलब होता है टू परफॉर्म 2 मूवमेंट एट ए टाइम और टू परफॉर्म 2 मूवमेंट वन आफ्टर अनदर। एग्जाम्पल, फुटबॉलर फुटबॉल खेल रहा है, ही इज रनिंग एंड एट द सेम टाइम ड्रिबलिंग द बॉल, तो इज डूइंग 2 मूवमेंट्स। ठीक है। थर्ड क्या हो सकता है कि ही इज रनिंग, ही इज ड्रिबलिंग एट द सेम टाइम ही इज सीइंग ऑल अराउंड टू द ऑल द प्लेयर्स, एक साथ 2-3 काम कर रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो है डिफरेंशिएशन एबिलिटीज। डिफरेंशिएशन एबिलिटीज का मतलब होता है डिफरेंट फोर्स फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल, अगर आप बास्केटबॉल को शूट करते हो तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है आपको अलग अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करना पड़ता है बॉल पे, तभी वो बॉल रिंग पे जाके कन्वर्ट होता है। या फुटबॉल पे आप जब गोल करते हो तो जैसे जैसे आप फुल बॉल गोल पोस्ट से डिस्टेंस बढ़ाते जाते हो, आपको अलग अलग फोर्स अप्लाई करना पड़ता है। सेम वे में जब आप क्रिकेट में शॉट्स लगाते हो तो अलग अलग शॉट्स के लिए अलग अलग फोर्स एप्लीकेशंस लगते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो ये डिफरेंशिएशन, इससे क्या फायदा होता है, जब आप ट्रेनिंग कराते हो, जब ट्रेनिंग करते हो, कराना है, सो व्हाट आई डू, अपने बास्केटबॉल टीम के लिए, शूटिंग के लिए जो बास्केटबॉल का गर्ल्स का बॉल होता है उसका वेट अराउंड 500 ग्राम्स के आसपास होता है। हम लोग क्या करते थे कि मुझे पता है कि 500 ग्राम्स का अगर बॉल देंगे और उसी साइज का बॉल देंगे, द गर्ल्स विल कन्वर्ट द बॉल, क्योंकि उनके सेंस में डेवलप किया हुआ है। हम लोग क्या करते थे, बॉल का वेट को चाहे तो कम कर देते थे या हम ज्यादा कर देते थे, बॉल के साइज को चाहे तो कम कर देते थे या तो हम ज्यादा कर देते थे। इस टाइप के 6-7 बॉल्स को रखते थे, अलग अलग साइज के और अलग अलग वेट के। अब क्या होता है, जब सेम प्लेयर डिफरेंट साइज और डिफरेंट वेट के बॉल्स को रिलीज करेगा, सो उसके शॉट्स पहला बार में कन्वर्ट नहीं होगा, सेकेंड बार में कन्वर्ट नहीं होगा, पर लेकिन 2 या 3 बॉल के बाद उसका फोर्स, उसका न्यूरॉन, इसका नर्वस सिस्टम अंडरस्टैंड कर जाता है कि जो नया बॉल आता है उसको किस तरह हम कंट्रोल करें, कितना फोर्स अप्लाई करें। ठीक है। सो इससे क्या होता है, वो अडेप्ट करते हैं, वो क्विकली अडेप्ट करते हैं चेंजिंग सिचुएशंस पे। तो जो जितना जल्दी अडेप्ट कर लेगा वो उतना बढ़िया परफॉर्म कर लेगा। आप ये पाए होंगे जो छोटे बच्चे व्हेन यूज्ड टू प्ले इन द कॉलेज और द गेम्स इन द स्कूल, दे परफॉर्म वेरी वेल, प्रैक्टिस में दे परफॉर्म वेरी वेल, पर जैसे प्रैक्टिस से हट के वो मैच सिचुएशंस में जाते हैं तो उनका परफॉर्मेंस लेवल चेंज हो जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है इसमें बैलेंस एबिलिटीज। सो अगेन बैलेंस एबिलिटी को जब ट्रेन करना है तो इसमें 2 पार्ट है, एक स्टैटिक बैलेंस है और एक डायनेमिक बैलेंस है। स्टैटिक बैलेंस में आपको अलग ट्रेन करना है, जैसे स्टैंडिंग ऑन 1 फुट, और मूवमेंट वाले में क्या होता है कि आप जब मूव कर रहे होते हो, आप रन कर रहे होते हैं, उसमें अपने बैलेंस को मेंटेन करना, या किसी आप एक नैरो वॉल के ऊपर चलना जहाँ डिफिकल्टीज हो और आपको बैलेंस मेंटेन करना हो अपने बॉडी वेट के साथ साथ और साथ साथ अलग अलग बॉल्स के साथ भी। तो जिस टाइप का जो बैलेंस एबिलिटी, जब आप उसको एबिलिटी को, जब बैलेंस एबिलिटी को आप जब कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो जो चैलेंजेस आप फेस करते हो उस चैलेंज को एडप्ट करना इज कॉल्ड अगेन द कॉग्निटिव एबिलिटीज। और वहां फिर से रोल क्या प्ले होता है आपका, न्यूरॉन्स का। ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिदमाइजेशन, इज वेरी क्लियर। रिदमाइजेशन इज लाइक टू शूट ऑन ए पर्टिकुलर रिदम, है ना।
जैसे हम लोग बास्केटबॉल शूट करते हैं तो बॉल्स को प्लेयर को लेके बोलते हैं 1 2 और 3 में बॉल को शूट करता है। व्हेन से 1 2 इट गेट अ रिदम, एक रिदमाइजेशन होता है। तो जो स्मॉल किड्स होते हैं उनको हम लोग रिदमाइजेशन पे ज्यादा शूट कराते हैं। एक सिंपल अच्छा सा एग्जांपल है, आप ये फील करना कि अगर आपको प्रैक्टिस के दौरान म्यूजिक दे दिया जाए, ओके, और आप म्यूजिक के बाद आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो उसका जो बीट होता है, म्यूजिक का बीट, यू विल गेट अ परफेक्ट टाइमिंग टू शूट। ऐसा मैंने काफी प्रैक्टिकली फील किया अपने बास्केटबॉल टीम के साथ। जब मुझे लॉन्ग आवर्स में शूटिंग कराना होता था तो मैं हाई बीट वाले म्यूजिक लगा के शूटिंग देता था। उससे क्या होता था, मैंने पाया कि शूटिंग परसेंटेज रेट improves by 10 to 15%. So rhythmization helps. And then next is reaction ability. So रिएक्शन एबिलिटीज में क्या है, आपको यहाँ जब रिएक्शन एबिलिटी को ट्रेन करता है तो 3 चीज का इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑन द बेस ऑफ विजुअल, यानी आंख से देख के। सेकंड इज टेक्टाइल, टच करके। एंड थर्ड इज एक्वेटिक, सुन करके। अब क्या होता है, व्हेन वी प्रैक्टिस, हम लोग जब प्रैक्टिस करते हैं फुटबॉल या वॉलीबॉल या बास्केटबॉल, तो क्या होता है कि विसिल बजाया जाता है और हम लोग उस विसिल पे रिएक्ट करते हैं, है ना। जैसे हम लोग प्रैक्टिस में आपस में खेल रहे हैं तो देयर इज ऑलवेज ए विसिल। व्हेन वी परफॉर्म अ ड्रिल देयर इज ऑलवेज ए विसिल। ऑन माय विसिल, आपको आगे भागना है, ऑन माय विसिल यू हैव टू कम बैक। तो अपना जो ट्रेनिंग है वो क्या हो रहा है, वो साउंड सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है। पर जब मैचेस में जाते हो, मैचेस में क्या होता है, साउंड पे रिएक्ट नहीं करते हैं, वी रिएक्ट ऑन द विजुअल्स, है ना। बॉल की स्पीड को देख के हम रिएक्ट करते हैं, बॉल के मूवमेंट को देख के हम रिएक्ट करते हैं। ओके, सो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि 3 चीज पे ट्रेनिंग करना है रिएक्शन में, साउंड पे, विजुअल पे और टच पे। इन तीनों चीजों के ऊपर टच के आपको ट्रेनिंग करना है। अब इन जब आप अपने ड्रिल्स बनाओगे, तो आप जब ड्रिल्स बनाओ तो आप देखो टच पे क्या कर सकते हैं। टच पे ये होता है कि अगर आपने बॉडी टच किया, अगर आपने लेफ्ट हैंड टच किया तो किधर मूव करना है, राइट टच किया तो किधर मूव करना है, या वॉल्यूम अलग अलग साउंड सुनोगे तो कैसे मूव करना है, या अलग अलग विजुअल देखोगे तब कैसे मूव करना है। ये ऐसा होता है, आपने देखा होगा ना, एक रिएक्शन गेम में क्या होता है कि एक मशीन होती है जिसमें डिफरेंट कलर्स लगे रहते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो। तो उसमें ये होता है अगर रेड हुआ तो ये टच करना है, ग्रीन हुआ तो ये टच हुआ है। वो आपका विजुअल्स के ऊपर काम होता है। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एबिलिटी है, वो है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन मीन्स अगर आप सेम इन्वायरमेंट में डेली प्रैक्टिस करोगे, आप बहुत कंफर्टेबल फील करोगे और आपका जो परफॉर्मेंस है वो स्टेबल रहेगा। पर आप जब मैच खेलने जाते हो, वहाँ ग्राउंड दूसरा होता है, ओपोनेंट्स दूसरे होते हैं, रेफरीज नए होते हैं, क्लाइमेट टेम्परेचर अलग होता है। तो उसमें क्या होता है, आपका परफॉर्मेंस भी अलग हो जाता है फिर। जिसका न्यूरॉन सिस्टम अच्छा है, जिसकी नर्वस सिस्टम की और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी की ट्रेनिंग अच्छी है, आप देखना वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर जाता है न्यू कंडीशंस में, न्यू सिचुएशन में और न्यू चैलेंजेस में। इसी में को बोलते हैं एक्सपीरियंस प्लेयर और नोविस प्लेयर, है ना। तो आप ये देखना कि आपको जब ट्रेनिंग कराना है, ये करना है, तो इन सब एबिलिटीज के ऊपर आपको ध्यान देना है जो कंपोनेंट्स है। সরি, সুব্রত মল্লিক স্যার প্লিজ আপনার শেয়ারিংটা স্টপ করুন। সুব্রত মল্লিক স্যার, আপনার उमाकांत सर, क्या सर? आप फिर से स्क्रीन शेयर कर दीजिए और ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। एक क्या बार करें? फिर से सर आपको सर फिर से स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा एक बार। स्क्रीन शेयर, ओके। हाँ हाँ, क्यों आया नहीं रहा था क्या अभी? नहीं सर, वो गलती से स्क्रीन शेयर हो गया था कोई दूसरे से, इसलिए अभी? वो स्क्रीन चला गया। हाँ, अभी जब पहले आप किए थे वैसे ही स्क्रीन शेयर कर दीजिए। सर पीपीटी पे क्लिक कीजिए। हाँ, आ रहा है सर। ये Thank you, सर। आप लोगों ने इस स्लाइड को देखा था? हाँ सर, हाँ। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स हुए। हेलो सर जूम कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं? सर प्रेजेंटेशन में क्लिक कर दीजिए ताकि स्लाइड बड़ा हो जाए। ओके सर, मैं आगे बढ़ूं कि कुछ पूछ रहे हैं आप लोग? सही है मैं आगे बढ़ूं या कुछ पूछना है? सर, बाद में पूछेंगे स्टूडेंट। आगे बढ़ो ना, ठीक है। जी।
ये सारे कंपोनेंट्स हैं आपके कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के, है ना। अब ये जानते हैं कि वाई, अब हमें ये जानना है कि जब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कर रहे हैं इसका फायदा है क्या है, क्यों हम करें, वाई वी शुड ऐड दिस इन आवर ट्रेनिंग सिस्टम। अपने जो ट्रेनिंग सिस्टम में इसको क्यों ऐड करें, क्या फायदा मिलेगा, कि जो हम न्यूरॉन्स की ट्रेनिंग करने का क्या बेनिफिट है, क्यों करना है। सो आप इन जनरल पॉइंट वाइज आप देखना कि इन जनरल कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज आर नीडेड इन ऑर्डर टू मास्टर सिचुएशन that required purposeful and also motor fast motor action। यहाँ जो इंपॉर्टेंट वर्ड है फास्ट मोटर एक्शन। गेम्स में क्या होता है, आपको कोई भी जो मोटर मूवमेंट होता है उसको क्विकली करना होता है और एक्यूरेटली करना पड़ता है। दो वर्ड है, फास्ट एंड एक्यूरेट। तो जो फास्ट एंड एक्यूरेट है वो डिपेंड करता है इंफॉर्मेशन पे, ओके। इंफॉर्मेशन डिपेंड करता है आपके नर्वस सिस्टम पे। सो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अपने मूवमेंट को फास्ट एक्यूरेट करना है, दैट्स व्हाई वी नीड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। सेकंड है जनरल एंड मोटर स्पोर्ट्स लर्निंग एबिलिटीज। जिन प्लेयर्स का या जिन स्टूडेंट्स का नर्वस सिस्टम ट्रेनिंग अच्छा होता है, यानी जिनका न्यूरॉन्स अच्छे काम कर रहे होते हैं या फंक्शन कर रहे होते हैं, आप देखना वो बहुत जल्दी स्किल सीख लेते होंगे। आपके कॉलेज में ही जो बीपीएड या मास्टर्स में जो बच्चे होंगे, कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे उनको आप कोई भी स्किल देखो बहुत जल्दी सीख जाते हैं, वो बहुत जल्दी अडेप्ट कर लेते हैं, बहुत जल्दी सीख जाएंगे। चाहे वो टेनिस का स्किल सिखा दो आप उसको, चाहे आप उसको सिखा दो बैडमिंटन का, बास्केटबॉल का, वो बहुत जल्दी सीखते हैं। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत जल्दी लर्न करते होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जिसको नया स्किल सीखने में बहुत चैलेंजेस होता होगा। तो ये डिपेंड करता है उनके स्पीड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के ऊपर नहीं, ये डिपेंड करता है उनके ब्रेन के फंक्शनिंग और उनके नर्वस सिस्टम के ट्रेनिंग के ऊपर। जिनका न्यूरॉन का सिस्टम का ट्रेनिंग अच्छा होगा वो बहुत जल्दी किसी भी स्किल को सीख लेंगे। सेकंड है टाइम रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग स्पोर्ट्स टेक्निक। हाँ, जिनके पास, जैसे मैंने बताया कि अगर आपके पास आपकी नर्वस सिस्टम की ट्रेनिंग अच्छी है, कोऑर्डिनेटिव ट्रेनिंग अच्छी है आपकी, तो आप बहुत जल्दी किसी स्किल को सीख लोगे। यानी स्किल एक्वायर करने में भी आपको मदद करता है, जल्दी एक्वायर करने में मदद करता है, और स्किल की जो क्वालिटी होती है ना, उस क्वालिटी को बढ़ाने में भी आपको नर्वस सिस्टम हेल्प करता है। एग्जाम्पल, मैंने टेनिस का शॉट मानते हैं कि बॉल को कहाँ प्लेस करना है, या बैडमिंटन में शटल को कहाँ प्लेस करना है, ये आपकी क्वालिटीज पर है, ठीक है। फुटबॉल में पासिंग अच्छा कैसे निकालना है, अगेन ये क्वालिटी ऑफ मूवमेंट है, एग्जीक्यूशन है। बास्केटबॉल में शूटिंग कितना स्मूथली मारना है, बास्केटबॉल में अलग अलग तरह के शॉट्स होते हैं। एक शॉट्स जो बड़ा प्यारा होता है, जो आपने बॉल रिलीज किया वो ना बोर्ड में टकराएगा ना रिंग में टकराएगा, सीधे नेट पे जाएगा। तो बड़ा एक्सक्यूशन जो होता है, बड़ा फाइन्यूट एग्जीक्यूट करने, क्वालिटी ऑफ एग्जीक्यूशन को इम्प्रूव करता है। एंड थर्ड, आपके जो कंडीशनल एबिलिटीज हैं, यानी आपके जो स्पीड स्ट्रेंथ इंड्योरेंस है ना, आपके बॉडी के अंदर ये तीन पोटेंशियल्स है कि स्पीड कितना ग्रो कर सकता है, स्ट्रेंथ कितना ग्रो कर सकता है, इंड्योरेंस कितना ग्रो कर सकता है, ये कितना ग्रोथ है। अब उसका इस्तेमाल गेम में कैसे होगा, जैसे मेरे अंदर बहुत अच्छा इंड्योरेंस है, ओके, बट उस इंड्योरेंस को गेम में शो आउट भी तो करना पड़ेगा ना, उसको यूटिलाइज भी तो करना पड़ेगा। यानी आपके पास कोई रिसोर्स है, उस रिसोर्स का बेस्ट यूज भी तो होना है। तो उसका बेस्ट यूज होने के लिए भी आपको आपके नर्वस या आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम के ऊपर डिपेंड करना है। सो ये जो स्लाइड है ये बता रहा है कि हम लोग कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज आपके लिए क्यों जरूरी है। ये याद रखना है, स्किल सीखने के लिए, स्किल सीखने में कम समय लगता है, क्वालिटी अच्छी होती है, और आपके अंदर जो स्पीड स्ट्रेंथ इंड्योरेंस जो एनर्जी सिस्टम है उसका बेहतर इस्तेमाल होना। और एक चीज़ और सारी से मिस कर रहा हूँ मैं, वो ये होता है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज अच्छी है और अब आपको अपने टेक्निक को चेंज करना है ना, इट इज़ वेरी हार्ड टू चेंज द टेक्निक। बट अगर आपका टेक्निक गलत है, अगर आप किसी अच्छे कोच के पास आए हो और आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी शुरू से अच्छी रही है, तो आप नया टेक्निक बड़ा स्मूथली सीख जाओगे। हाँ, ये कंडीशन है, फास्ट एप्लीकेशन ऑफ स्पोर्ट्स टेक्निक इन चेंजिंग सिचुएशन अंडर डिफरेंट कंडीशन। जैसे मैंने पहले बताया था कि अगर आपका कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज अच्छी रहेगी, नर्वस सिस्टम अच्छी रहेगी, तो अगर कंडीशन को चेंज भी करोगे तो आप बहुत जल्दी उसमें अडेप्ट कर लोगे। एडेप्टेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, एडेप्टेशन। जैसे आप देखना कोई प्लेयर शाम को प्रैक्टिस करता है और उसको मॉर्निंग में मैच खिला दो, उसका परफॉर्मेंस चेंज हो जाएगा। सिर्फ क्या चेंज हुआ है, वेदर कंडीशन या टेम्परेचर, और उससे क्या हुआ असर पड़ा, उसका एक्यूरेसी कम पड़ जाता है। पर अगर उसके नर्वस सिस्टम अच्छे होंगे,
तो वो 1-2 सेशन के अंदर ही अडेप्ट कर जाएगा। और जो लास्ट पॉइंट जो मैंने डिस्कस कर लिया है, हाउ फास्ट एन एथलीट कैन रीलर्न आफ्टर सेवरल ईयर ऑफ ट्रेनिंग और फॉल्ट करेक्शन। अगर आप में टेक्निक में कोई फॉल्ट है तो उसको रीलर्न करने में भी आपको ये मदद करता है। अब सब जो एग्जाम्पल इसका क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है लास्ट पॉइंट का, कोई भी बच्चा पहले अपने पी टीचर्स के अंदर ट्रेन होता है, उसके बाद कोचेस के पास जाता है, ठीक है। तो पी टीचर्स अगर अपने ट्रेनिंग शेड्यूल में कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के ऊपर वर्कआउट करते रहेंगे और उनका नर्वस सिस्टम अच्छा रहेगा, तो किसी भी कोच के अंडर में बाद में जब जाएगा तो बहुत जल्दी स्किल्स को सीख पाएगा, या कुछ चेंजेस भी करना होगा तो या मॉडिफाई भी करना होगा, वो कोच उसके अंदर वो मॉडिफिकेशन वो चेंजेस बड़ा इजीली लेके आ पाएगा। नाउ अब आप जान गए कि कोऑर्डिनेटिविटी क्या है, उसके कंपोनेंट क्या है, क्यों क्यों जरूरी है। अब बात आता है कि इसको ट्रेनिंग कब करना है, व्हेन टू ट्रेन। अब किसी चीज को जान गए, व्हेन टू ट्रेन, अपने शेड्यूल में उसको कहाँ लगाना है। इनका है अकॉर्डिंग टू कि आप जिस दिन भी ट्रेनिंग करो उसका एक सेपरेट सेशन होना चाहिए। एग्जाम्पल, आपने मंडे मॉर्निंग को रखा कि नहीं हम बात करेंगे स्पीड के ऊपर, और ट्यूसडे हम बात कर रहे हैं कि एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के ऊपर, तो ऐसा नहीं कि स्पीड के बाद हम कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज करा दिए, या एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के बाद कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का सेशन रख लिए, या इंड्योरेंस के बाद नहीं। इसके लिए एक सेपरेट सेशन होना चाहिए। सेपरेट सेशन का मतलब होता है कि आप बढ़िया सो के आए हो, आपका बॉडी फुल रेस्ट में है। जब बॉडी आपका फुल रेस्ट में होता है ना, तो रेस्ट के बाद जो आप ट्रेनिंग करते हो वही ट्रेनिंग आपको इफेक्ट करता है, खास करके नर्वस सिस्टम में। इसीलिए कहा गया है whenever possible train the coordinated abilities as a separate part of the training session, number 1। नंबर 2, वो सेशन कभी भी 45 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। रीजन, अगर 45 मिनट से ज्यादा होगा तो आपको फटीग आएगी, और जब फटीग आएगा तो एनर्जी कंज्यूम होगा। जब एनर्जी कंज्यूम होगा तो हम लोग का जो पर्पस है वो चेंज हो गया, क्योंकि हम लोग ट्रेन करने आए किसको, इंफॉर्मेशन सिस्टम को, ओके। पर अब क्या हो जाएगा, फटीग आने से क्या हो जाएगा, जो अटेंशन है वो इंफॉर्मेशन से डाइवर्ट होकर कहाँ चला जाएगा, एनर्जी सिस्टम के ऊपर। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कभी भी वो सेशन 45 मिनट्स के ज़्यादा का नहीं होना चाहिए, और उस 45 सेशन के बीच में लॉट ऑफ रिकवरीज भी होनी चाहिए। रिकवरी इंपॉर्टेंट है, यानी आपको टायर्डनेस नहीं होना है। नेक्स्ट है यूज मेनी वेरिएशन ऑफ एक्सरसाइज। आपके ट्रेनिंग सिस्टम में आप क्या वेरिएशंस का इस्तेमाल करना। वेरिएशन का इस्तेमाल करने का मतलब होता है, एग्जांपल बास्केटबॉल का ड्रिबल का एग्जांपल लेते हैं। आप एक पैर एक बॉल से ड्रिबल कर रहे हैं, जब आप एक बॉल से ड्रिबल कर रहे हैं तो दौड़ के ड्रिबल करो, चैलेंज बढ़ गया। बिटवीन द लेग निकालो, चैलेंज बढ़ गया। फिर आप उसको 2 बॉल दे दो, जब वो 2 बॉल से ड्रिबल करेगा तो उसको बहुत सारे चैलेंजेस फील होगा, लेकिन कुछ देर के बाद वो उसको एडेप्ट कर लेगा। जब वो 2 बॉल से एडेप्ट कर लेगा तो आपको क्या करना है कि 2 बॉल का ड्रिबलिंग के साथ साथ उसके आगे कुछ नंबर शो करो, उससे पूछो कि नंबर क्या है। अब वो क्या करना है, उसको 2 बॉल ड्रिबल भी करना है, वॉक भी करना है, साथ में नंबर्स भी बताना है। तो क्या है कि आपने उसका धीरे धीरे चैलेंजेस किया, हेलो, तो आप उसके वेरिएशन को जब चेंज करोगे ना तो उसको क्या है कि लगातार उसको चैलेंज फील होते रहना पड़ेगा हमेशा। उसको की जब वो एक टास्क को मास्टर कर रहा होगा, उसके लेवल ऑफ डिग्री ऑफ डिफिकल्टीज को बढ़ा दो। जब लेवल ऑफ डिग्री ऑफ डिफिकल्टीज को बढ़ा दोगे ना तो उसको उतना चैलेंज फील होगा। जब उसको चैलेंज फील होगा तो उसके नर्वस सिस्टम को एडॉप्ट करना पड़ेगा। तो जब एडॉप्ट करना होगा ऑटोमेटिक उसका इंप्रूवमेंट होगा। लास्ट है स्टार्ट विथ सिंपल कोऑर्डिनेटिव टास्क एंड प्रोसीड टू मोर डिफिकल्ट कोऑर्डिनेटिव टास्क। मैंने बताया कि किसी सिंपल टास्क से स्टार्ट करना है और धीरे धीरे टास्क को आप ग्रेजुअली उसको डिफिकल्ट बनाना है ताकि चैलेंज इसको मिलता रहे। अलाउ ब्रेक विथ कंप्लीट रिकवरी बिटवीन सेट्स। मैंने पहले ही बताया है कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज और जो आपका नर्वस सिस्टम का ट्रेनिंग तभी इम्पैक्टफुल होगा जब आपका बॉडी कंप्लीट रेस्ट पे होगा, ठीक है। इसलिए डिफरेंट सेशन का ही रिक्वायरमेंट है, और वर्कआउट्स के हर 2 सेशन के 2 सेट के बीच में प्रॉपर रिकवरी देंगे। थर्ड, द पीरियड ऑफ टाइम बिटवीन 2 ट्रेनिंग सेशन विद कोऑर्डिनेटिव ट्रेनिंग शुड नॉट एक्सीड 7 डेज। मीन्स आपके 2 कोऑर्डिनेटिव सेशंस के बीच में मैक्सिमम 7 दिन से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। तो क्या बेस्ट है, बेस्ट है कि आप अपने 7 डेज वीक में 1 दिन का ट्रेनिंग सेशन रखना है।
अब ये डिपेंड करता है, अगर मैं मेरा सजेशन ये है, अगर आप छोटे बच्चों के साथ डील कर रहे हो तो 2 डेज रखो इन ए वीक, बड़ों के साथ डील कर रहे हो तो 1 डे इन ए वीक रखना है आपको, है ना, क्योंकि छोटे बच्चों में इम्प्रूवमेंट का टाइम है। क्योंकि जब छोटा बच्चा होता है आप उसको ये समझ लो कि जब बच्चा बर्थ होता है ना, जब वो बॉर्न होता है तो देखना वो हाथ पैर हिलाता है, यूज्ड टू शेक हिज हैंड एंड लेग्स, तो मूवमेंट जो है उसका रिक्वायरमेंट है। ओके, और सर बड़े होते हैं, बॉडी छोटे होते हैं, तो पहले क्या होता है कि उसके ब्रेन को डेवलप किया जाता है, इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन्स। उसके न्यूरॉन्स जो होते हैं आपस में कोलाइड होते हैं कि एक इंफॉर्मेशन के टर्म में। तो छोटे बच्चों में कोऑर्डिनेटिव ईटिंग सेशन ज़्यादा होना चाहिए, और जब आप सीनियर्स में आ जाओ तो सेशन कम से कम 1 इन ए वीक करना है। अब एक चार्ट है, चार्ट में है कि आगे देखेंगे कि क्या क्या ट्रेनिंग सेशन जब हम लोग करते हैं तो छोटे बच्चों के साथ क्या रखना है, बड़ों के साथ क्या रखना है। एक एग्जांपल यहाँ से है, इस स्लाइड्स को देखेंगे ना, इस स्लाइड में नीचे देखोगे कि आपको बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, ठीक है, और बॉयज़ और गर्ल्स में होगा, मेरा अगर एरो देख पाओगे तो बॉयज़ गर्ल्स और नीचे उनका ये एज है ना, और एज के साथ ये डिफरेंट कैटेगरीज बांटा हुआ है। जैसे इसको बोलते हैं प्री स्कूल एज, जहाँ 4, 5, 6 है, अर्ली एज ग्रुप है जहाँ 7, 8, 9 है, फिर लेट एज ग्रुप में जिसमें पीपल बोलते हैं जो 9, 10 और 11 है। देखना कि 11 तक गर्ल्स और बॉयज़ का जो ग्रोथ है लगभग ऑलमोस्ट थोड़ा मोड़ा आगे पीछे है, पर जैसे प्यूबर्टी का टाइम आता है, मीन्स आफ्टर 11, सॉरी आफ्टर 11 गर्ल्स पहले प्यूबर्टी में जाती है, बॉयज़ थोड़ा सा लेट में जाता है, फिर उनका जो प्यूबरल फेज आता है जो चलता है 14.5 ईयर्स तक, तो वहाँ पे एक डिफरेंट चैलेंजेस होता है। फिर उसके बाद जब प्यूबर्टी फिनिश हो जाता है, जब बॉडी में बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं, तो ग्रोथ पैटर्न भी चेंज हो जाता है। अब आप मेरा स्लाइड, ये स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को? हेलो, यस सर। ठीक है। अब आप देखना कि इधर अर्ली एज एबिलिटी है, लेट एज एबिलिटी है, न्यूट्रल एबिलिटी है जो परपेंडिकुलर में है, वर्टिकल्स में। तो आप ये देखना कि कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी और जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, ये अर्ली एज एबिलिटी है, अर्ली एज में इस पे काम करते हैं, कोऑर्डिनेटिव और फ्लेक्सिबिलिटीज के ऊपर। कहाँ पे? 4 ईयर से लेके प्यूबर्टी तक काम होता है, ठीक है। कारण क्या है? क्योंकि बिफोर प्यूबर्टी जो होता है, या সরি ফর দ্য ইন্টারাপশন। অপরেশ সরকার স্যার, অপরেশ বাবু আপনি কাইন্ডলি আনমিউট করুন, আপনি বারবার স্পিকারটা অন করছেন। আপনি মিউট আপনি আপনি মিউট করুন। হ্যাঁ, লাইনে থাকলে হবে না তো, আপনি আগে বারবার 4-5 বার মিউট করলাম। ও হবে এবার। না পারছি স্যার। স্যার প্লিজ ক্যারি অন স্যার। हाँ, तो आप ये देखना कि एबिलिटीज वाला काम हो गया, तो जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज और फ्लेक्सिबिलिटीज है ना, ये अर्ली एज एबिलिटी है। अर्ली एज एबिलिटी का मतलब है कि आप उसको अर्ली एज में ट्रेन करोगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, है ना। उसका रीजन मैंने पहले बताया, पहला रीजन ये है कि ब्रेन पहले डेवलप होता है फिर बॉडी होता है। सेकेंड रीजन ये है कि जब बच्चा 4 से 5 साल का होगा ना, आप देखना उसका ब्रेन डेवलप हो चुका होता है, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट बॉडी चेंज। 5 से 6 साल के बीच में फर्स्ट बॉडी चेंज होता है। फर्स्ट बॉडी चेंज होने के बाद क्या होता है, आर्म्स का, हेड का और बॉडी का एक प्रोपोर्शनेट आता है, बॉडी वेट हल्का होता है। बॉडी वेट हल्का होने की वजह से ब्रेन का डेवलपमेंट सही तरीके होने की वजह से, क्योंकि बच्चा स्कूल जाने लगता है, इंटेलिजेंट होता है, इस एज में आप बहुत जल्दी जल्दी काफ़ी स्किल सीख पाते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं प्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये जो ट्रेनिंग करना है वो अर्ली एज में करना है, क्योंकि जैसे 12-13 साल के बाद क्या होता है, सारे न्यूरॉन्स आपस में मर्ज हो चुके होते हैं, मोस्ट ऑफ द न्यूरॉन्स, तो वहाँ पर ज़्यादा चैलेंज फील करता है नहीं। इसीलिए अगर आप देखना कि जो यूरोपियन सिस्टम में होता है ना, उनको बहुत सारे स्किल वर्कआउट्स देते हैं, ना कि रनिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या वो पार्ट पे देते हैं ना। अब फिर आप देखना कि ये अर्ली एज एबिलिटीज़ है, इसके बाद स्पीड एबिलिटी भी अर्ली एज में आता है। मोटर लर्निंग, यहाँ देखना मोटर लर्निंग जो एबिलिटीज़ है, जितना ज़्यादा स्किल सीखना है वो 8, 9, 10 ईयर्स के बीच में आप सीख लो, क्योंकि जब प्यूबर्टी आता है उसके बाद बॉडी ज़बरदस्त तरीके से चेंज होता है, आर्म्स हैंड का कोई प्रोपोर्शन नहीं होता है, तो चैलेंजेस ज़्यादा फील करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको कुछ पूछना हो तो।
हेलो। স্যার আপনার স্ক্রিন শেয়ারটা অফ করবেন স্যার কাইন্ডলি। कितने আপনার करना है स्क्रीन शेयर স্ক্রিन क्या? শেয়ার আরে हाँ प्लीज। হ্যাঁ, এতক্ষণ ধরে আমরা আলোচনা শুনছিলাম যে স্পোর্টসের ক্ষেত্রে কোঅর্ডিনেটিভ এবিলিটির কি ভূমিকা। এই প্রসঙ্গে বিস্তারিতভাবে কিভাবে কোঅর্ডিনেটিভ এবিলিটি আমাদের বাড়ানো যায় সে প্রসঙ্গে বললেন ডক্টর উমাকান্ত সিং স্যার। এখন আমি এই সেশনটা ওপেন করছি কোয়েশ্চেন অ্যান্সারের জন্য। যদি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে, উমাকান্ত স্যার অলরেডি বলে দিয়েছেন, যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা কাইন্ডলি আনমিউট করে প্রশ্ন করতে পারেন। एक चीज काम करना है, वेट। जितने हाँ। लोग भी है ना, अपने अपने चैट बॉक्स में जाइए और चैट बॉक्स में जितने लोग हैं वो टाइप कीजिए कि आप जहाँ काम करते हो या जो आपका एरिया है उसमें किस एज ग्रुप के बच्चे हैं। ठीक है, काइंडली टाइप द एज ग्रुप, सब कोई, तो उससे मालूम चल जाएगा कौन किसके साथ काम कर रहा है, कौन अभी अटेंशन भी है। प्लीज go and type in the chat box the age group of the child with you are dealing with now. लेट्स सी कितने रिप्लाई आते हैं। সমস্ত স্টুডেন্টরা তোমরা কোন এজ গ্রুপের সঙ্গে কাজ করছো একটু তোমরা এজ গ্রুপ লিখে দাও। अगर आप अटेंटिव है तो तुरंत रिप्लाई बैक कर दोगे। হ্যালো, হ্যাঁ অপরেশ, আপনি বারবার মিউট করে রাখুন। বলছি অপরেশ বাবু, আপনার যদি প্লিজ 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 আস্ক ইউর কোয়েশ্চেন স্যার প্লিজ। as we discussed the coordinative abilities, each and every game having their own coordinative abilities, isn't it? Hello, উমাকান্ত স্যার, coordinative ability having their own capacity and ability in each and every game. क्या बोल रहे हैं? once again सर, हम मैं बोल रहे हैं कि presentation ability coordinative ability जो है उसको बारे में बताना चाहता है कि अलग अलग गेम का अलग अलग कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी रहता है क्या नहीं, तो एक ही है। देखिए, कॉन्सेप्ट इज सेम। ठीक है, आप ट्रेनिंग में आप ड्रिल्स गेम अनुसार चेंज कर सकते हो, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम। एग्जांपल, अगर आपको डिफरेंट सरफेस रन कराया जाए, ओके, बॉल के साथ, यहाँ पे हार्ड सरफेस भी हो, स्पंज भी हो, वुड भी हो, तो अब क्या होगा, आपको अलग अलग फील्ड मिलेगा और अलग अलग चैलेंज मिलेगा। अगर आपको वहाँ बॉल ड्रिबल करना हो या फुटबॉल का बॉल किक करना हो तो क्या है, अलग अलग है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक गेम के लिए ही है, इट विल वर्क एवरीवेयर। पर एज ए कोच यू शुड ट्राई टू यूज द स्किल्स ऑफ योर गेम। ये आपको खुद डिजाइन करना है। ओके, छोटे बच्चों के लिए कॉमन रखना है, पर जैसे हम गेम्स पे जाएंगे उसके लिए अलग करना है। एक एग्जांपल है, फुटबॉल प्लेयर है, सी फुटबॉल प्लेयर को अगर हमको ड्रिबल कराना होगा तो एक हाथ में बॉल दे दो, ठीक है, और एट द सेम टाइम उसको बोलो कि आप बॉल ड्रिबल करते रहो और उसको नंबर पूछते रहो। सो ही हैज टू डू 2-3 वॉक्स, चैलेंज होगा धीरे 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 धीरे। मैं अपने गेम से ज्यादा एग्जांपल इसे दे रहा हूँ कि मैंने वो सारा इस्तेमाल किया है।
जैसे यूजुअली बास्केटबॉल में स्किल है ड्रिबलिंग का, ओके, टू इम्प्रूव ड्रिबलिंग व्हाट आई डू, मैं उसको ड्रिबल तो देता हूँ, साथ साथ में एक फुटबॉल भी देता हूँ कि आपको ड्रिबल करते हुए फुटबॉल को मार के गोल करना है। सो क्या होगा, वो ड्रिबल करेगा, वो साथ में एट द सेम टाइम ही विल सी द कोर्ट, ही विल सी फुटबॉल कमिंग, एट द सेम टाइम उसको मैनेज करना है। तो ये जो ट्रेनिंग सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर गेम पे, यू कैन यूज इन एवरी गेम, कॉन्सेप्ट इज सेम, रिएक्शन इज सेम, इसी में सेम है। आपको एक्वेटिक पे काम करना है, आपको विजुअल पे काम करना है, आपको टेक्टाइल पे काम करना है। एज ए कोच नाउ यू शुड बी क्रिएटिव, है ना, you should be creative how to make it. See, I got only how many replies? 3, 4, 5, 6 replies, means 6 people are attending. Okay, please. Actually I miss it, in between मुझे बोलते रहना था टाइप का, that is one of the point. ये क्या नाम है, ऑनलाइन सेशंस के एडवांटेज भी है और थोड़े डिसएडवांटेज भी है, ठीक है सर। माइट बी देयर वाज अ कम्युनिकेशन गैप, उनको थोड़ा बंगाली में मुझे लगता है मृत्युंजय सर थोड़ा बंगाली में आप बता दीजिए स्टूडेंट्स को तो वो समझ पाएंगे। স্যার বলেছেন তোমাদেরকে, বিগ প্রবলেম, স্যার বলেছেন তোমাদেরকে কি তোমরা কোন এজ গ্রুপের সাথে কাজকর্ম করো, তোমরা যেরকম তোমরা ধরে নাও কাজ করো না, পড়াশোনা করো, তো তোমরা কোন ক্লাস থেকে কোন ক্লাসে, যেরকম গ্র্যাজুয়েশন শুরু হচ্ছে 18 বছর 25 বছরে শেষ হচ্ছে, এরকম একটা যে গ্রুপের সঙ্গে কাজ করো সেটা চ্যাট বক্সে সবাই লেখো। সেটা স্যার জানতে চাইলেন, সবাই লেখো যারা যেটার সঙ্গে কাজ করো। দেখা যাক, স্যার বলছেন 6 জন মাত্র লিখেছে, দেখা যাক এটা বাড়ানো যায় কিনা। থ্যাংক ইউ সুপ্রিয় স্যার। Supriya sir is my batchmate, quite interesting guy, lot of full of knowledge. So actually he is one given the connection. Hello sir, Supriya sir. স্যার গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং। Good evening Supriya sir. আমাদের শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে বলছি, স্যার যেটা বললেন যে তোমরা যে এজ গ্রুপে কাজ করতে ইচ্ছুক বা যে এজ গ্রুপে কাজ করো সেই স্পেসিফিক এজ গ্রুপটা এখানে মেনশন করো চ্যাট বক্সে। সবাই উইদিন 1 মিনিটস দেখা যায় কতজন রিপ্লাই করে। ইন বিটুইন যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আপনারা কাইন্ডলি আনমিউট করে আমাদের স্পিকার আজকে যিনি एंड उमा सर, मुझे लगता है अपरेश सर ने आपसे पूछा था कि सर हर गेम का क्या कोई स्पेसिफिक कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी है जिस पे फोकस करना चाहिए, तो वो गेम स्पेसिफिक कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज के बारे में पूछ रहे थे शायद। फॉर एग्जांपल 100 मीटर में हमारा जैसे रिएक्शन टाइम का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि वो हार्डली तुम्हारा 10 सेकंड 12 सेकंड तक रहता है। तो वैसे कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज का उसमें आपका डिफरेंशिएशन का उतना इम्पैक्ट मोस्ट प्रोबेबली नहीं पड़ सकता है, या फिर आपका जैसे या रिदम का भी पड़ेगा ऑब्वियसली। तो ऐसे सर पूछ रहे थे कि गेम स्पेसिफिक कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज का क्या मतलब क्या कुछ है, ऐसा कुछ पूछ रहे थे शायद अपरेश सर। ताकि तो सर अपरेश सर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट, इट विल नॉट चेंज व्हाटएवर गेम इज। सेकंड पॉइंट, मैंने ये बताया था कि पहले आप जब छोटे बच्चों के साथ डील करते हो, मैंने ये बताया कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज है अर्ली एज एबिलिटी, पहला पॉइंट बताया था। इट मींस कि आपको जो बच्चे क्लास एज ग्रुप ऑफ 5, 6, 7, 8, 9, 10 मिला, उस पे आप ज्यादा फोकस करना, तब उसका न्यूरॉन्स ज्यादा अच्छा ट्रेन होगा। ओके, अब एट द एज ऑफ 8 or 9, do you think you are going to make someone an athlete of 100 meter? ठीक है, नंबर 1। पर आप जब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का बेस मजबूत कर लोगे ना, उसके बाद अगर आप इसको स्प्रिंटर बना रहे होगा, देखना कोई बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, रिएक्शन खासकर एक्वेटिक, किसी को टाइम लगता है, किसी को रिएक्ट करता है पर उसका मसल्स कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, तो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज हेल्प करता है। सेकंड चीज, मैंने एक चीज और बताया था कि इफ व्हाट इज द मेन गोल ऑफ 100 मीटर, टू रीच 100 मीटर एट मिनिमम टाइम। ओके, यानी जो आपका जो स्पीड है या एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, वो जो आपका जिसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी सिस्टम, उस एनर्जी सिस्टम का बेस्ट वे यूटिलाइज करने के लिए भी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज भी है। ठीक है, जैसे सिंपल टर्म में समझना है कि हम लोग जब पढ़ते हैं तो मैथ सीखते हैं ना, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, उसके बाद हम जाके 9, 10 में अर्थमेटिक बनाते हैं। इसी से इज ए एलिमेंट्री चीज, इसको करना है। यूरोप में
यही करते हैं ज्यादा, इसीलिए देखना वहां पे स्विमिंग, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, ये सारे इवेंट्स जो होते हैं वो सारे बच्चों को करना मस्ट है। और हम लोग ये डिसाइड करने में बहुत समय ले लेते हैं, तो हम लेट स्टार्ट करते हैं तो हम लेट पहुंचते हैं। ठीक है? और इंजरी से बचाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है, इंजरी से बचाता है। अगर आपके पास अच्छा नर्वस सिस्टम ट्रेनिंग रहा तो गलत पैर नहीं डालोगे, एंकल जल्दी 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 नहीं जाएगा, आपके मसल्स के कोऑर्डिनेशन भी बड़े अच्छे रहेंगे, है ना? Okay. থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ সুপ্রিয় মন্ডল স্যার। আজকের এই আলোচনার সঙ্গে আমি Sir, Mrityunjay sir, I just wanted to have one more query from sir. Anyway, Umakant sir, it was very nice presentation. और मैं बीच में ज्वाइन कर पाया, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा बिजी था, बट मुझे समझ में आता है कि आपने बहुत सही से बोला है और সবাই উপকৃত হয়েছে এটা থেকে। Just I had one query. There was something like 45 minutes तक आप मतलब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को अगर ट्रेन करना है, मैक्स आप कोशिश करो 45 मिनट तक, उसके आगे मत जाओ। तो क्या जो एंड्योरेंस गेम्स होते हैं, टीम गेम्स होते हैं, सपोज एक गेम 1.5 घंटा चलता है, फुटबॉल का ही पकड़ लीजिए, लंबा चल रहा है, 90 मिनट्स के बाद भी फिर भी चल रहा है, उसके बाद भी चल रहा है, सो ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो, ड्यूरिंग द कंडीशन ऑफ फटीग, टायर्डनेस, क्या उस टाइम भी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी का जरूरत नहीं है? क्या उस गोलकीपर को फिर भी कंटिन्यूअसली उसको बॉल की तरफ मूवमेंट्स नहीं करना है कंटिन्यूअसली? तो उसका ट्रेनिंग क्या बस वही 45 मिनट्स तक ही करवाएंगे, या कभी कभार थकावट के दौरान भी, टायर्डनेस के दौरान भी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज को मतलब ट्रेन करना चाहिए कि स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए? थोड़ा इस पे अगर आप बोलेंगे। इम्प्रूवमेंट इज वन थिंग, और कोई एक्वायर स्किल को प्रोलॉन्ग करना इज सेकंड थिंग। दैट्स व्हाई अगर आपने पहला स्लाइड आपने लेट आया तो इसलिए मिस किया, स्लाइड्स में मैंने बताया था जो परफॉर्मेंस का जो फैक्टर है ना, उसमें एक फैक्टर आपका था नर्वस सिस्टम ट्रेनिंग, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम ट्रेनिंग, यानी कोऑर्डिनेटिव ट्रेनिंग, और सेकंड एंगल था आपका एनर्जी सिस्टम या फिर कंडीशनिंग या फिर स्पीड स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। स्पीड स्ट्रेंथ इंड्योरेंस को हम एनर्जी सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एनर्जी यूटिलाइज होता है, ठीक है, और कोऑर्डिनेटिव सिस्टम को इंफॉर्मेशन सिस्टम इसलिए बोलते हैं क्योंकि न्यूरॉन्स को ट्रेन करता है। ये 2 पॉइंट था पहला स्लाइड्स में। फिर आपको ये समझना है कि हम अभी ट्रेनिंग किसा कर रहे हैं, ट्रेनिंग का मतलब इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट किसमें? अपने नर्वस सिस्टम का। आप एक इम्प्रूव्ड नर्वस सिस्टम ले आओ, अब उसके बाद आप अपने एनर्जी सिस्टम पे काम करते रहो, स्टेबलाइज हो जाएगा वो, ठीक है। ये फैक्टर ऑफ 45 मिनट इसलिए बोला था मैंने कि न्यूरॉन्स तभी ट्रेन होगा जब वो रेस्ट होगा, रेस्ट के कंडीशन में। सो के आए, अगर हम 5 किलोमीटर दौड़ लिए, पूरा एनर्जी सिस्टम लगा दिए, अब उसके बाद आप कुछ भी ट्रेनिंग दोगे ना, वो एनर्जी सिस्टम पे ही जाएगा, वो इंफॉर्मेशन पे नहीं जाएगा। इसीलिए मैंने कहा था कि सो के जब उठते हो रेस्ट पोजीशन पे करो, और 45 मिनट इसलिए बोला कि 45 मिनट के बाद आप में फटीग आना शुरू हो जाएगा। अब आप रिपीटेशन पे चले जाओगे, रिपीटेशंस पे नहीं जाना है, टास्क को टफ करना है और हर सेट के बाद प्रॉपर गैप देना है। कि जितनी बात मैंने आज बोला या जितनी बात मैंने बताया, कि कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं है, इसको कंप्लीटली यूज किया है मैंने, परफेक्ट रिजल्ट मिला है, तो ये टेस्टेड एंड ट्रस्टेड है सारी बात। থ্যাংক ইউ স্যার, থ্যাংক ইউ। আমি জাস্ট মৃত্যুঞ্জয় স্যার, আমি কি 1 মিনিট বলতে পারি একটু স্টুডেন্টদের ইয়েতে? This is for the students and other people who are here, over here. Umakant is a renowned basketball coach as well. Means he is actually the topper and the best student from ITK, Germany. তো উমাকান্ত স্যারের প্রচুর প্র্যাকটিক্যাল নলেজ আছে কোচিং ফিল্ডে। তো তোমরা যারা স্টুডেন্টরা আরো ফিউচারে বড় জায়গায় পৌঁছাতে চাও, ইজ ইন্ডিয়ান অ্যাম্বাসেডর, জার্মান অ্যাম্বাসেডর ফর দ্যাট অলসো। তো তোমরা যারা প্র্যাকটিক্যালি এরকম কিছু কাজ করতে চাও, ওনার আন্ডারে গার্লস টিম ও গার্লস টিমের আমাদের ইন্ডিয়ান টিমের প্লেয়াররা খেলছে, ওনার আন্ডারে এখন অনেকগুলো ভালো ভালো টিম পারফর্ম করেছে। তো তোমরা পাক্কা ওনাকে ইউজ করে নাও, ওনার কাছ থেকে যতটা পারো জিজ্ঞেস করো, এটা স্টুডেন্টদের সাথে। থ্যাংক ইউ। থ্যাংক ইউ স্যার। মৃত্যুঞ্জয় কোশ্চেন নাও। আমি আরো একবার রিকোয়েস্ট করছি, যদি কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকে কাইন্ডলি আপনারা আনমিউট করে প্রশ্ন কনভে করতে পারেন।
স্পিকার স্যারের সাথে প্রশ্ন করতে পারেন। ইতিমধ্যেই আমাদের সাথে আছেন অধ্যাপক অলোক কুমার ব্যানার্জি স্যার, যিনি শুরু থেকেই আছেন আজকের এই 56তম পর্বে। স্যার, আজকের এই আলোচনা প্রসঙ্গে যদি আপনার কোনো সাজেশন বা মতামত হয়, কাইন্ডলি যদি একটু শেয়ার করেন স্যার, প্লিজ। হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, শোনা যাচ্ছে। আমার গলাটা আজকে একটু অসুবিধা আছে। Anyhow, it was a good presentation. Particularly what Mr. Supriyo has mentioned, that it is very appropriate for those who are involved in coaching, and that generally the coordinating ability is very important, no doubt, and he has discussed the various aspects of it. But the most important thing which he has practically mentioned, that is the during match play. It was very, to some extent, also touched me in the sense that examples which he has given from basketball, football, that the position and of course the terminology which he has used. With all this terminology, I'm not actually I should not say it like that. That is something else. Say, for example, the kinesthetic sense. Kinesthetic sense is the muscle awareness, and particularly when the body is in the air, and that is not in the touched in the floor or in the ground. While in the air, the awareness of the muscles. So that also very important, particularly in basketball, as he has mentioned. So overall, the presentation is good, and I appreciate and I congratulate Mr. Umakant. Thank you very much. Thank you, sir. Even for the kinetic sense, as you mentioned about the air, yes, it is in the air, but at the same times, it's depend on how your muscles, your joints, your ligament responses. Like जब लोग ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, या जब लोग वर्कआउट कर रहे होते हैं, या हम एयर में है, एयर में भी है, तो क्या कर रहे हैं? वी आर सीइंग अबाउट सराउंडिंग, ना, वी आर सीइंग अबाउट द ओपोनेंट्स, वी आर सीइंग अबाउट हाउ टू गिव पास, वी आर सीइंग हाउ टू शूट. तो जो इंफॉर्मेशंस जो आ रहा है, अगर हम वहाँ ऐड कर रहे हैं न्यूरॉन्स, इट शूट फ्रॉम द न्यूरॉन्स, फ्रॉम अदर फ्रॉम द जॉइंट्स और फ्रॉम द ligaments or the tendons or bones or the muscles. It's like sensory things which you mentioned. Sure. অসংখ্য ধন্যবাদ স্যারকে। আমাদের সঙ্গে ছিলেন অধ্যাপক অলোক কুমার ব্যানার্জি স্যার, প্রাক্তন উপাচার্য। আমি অনুরোধ করব ডক্টর সুব্রত মল্লিক স্যার, স্যার কাইন্ডলি যদি আজকের এই আলোচনা প্রসঙ্গে কিছু আপনার মতামত শেয়ার করেন। सबको बड़ा नमस्कार, शुभ संध्या। और मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ, मेरा हिंदी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बात कर सकता हूँ, बांग्ला में भी बोल सकता हूँ, इंग्लिश में भी। मैं सोचता हूँ हिंदी में बात करने से सबको मालूम पड़ जाए, ये रहेगा। तो पहले मैं बोलना चाहता हूँ उमाकांत सिंह साहब को बधाई हो, आप बहुत बढ़िया एक डिलीवरी किया है लेक्चर, और मैं सुन रहा था right from the beginning, and I felt very nice your lecture. But there are certain things, if I'm a sports medicine doctor, so I am talking from the sports medicine desk, that is the medical desk for the sports people and all. I have served. So the thing is that जो मैंने बोलना चाहता हूँ, कुछ आवाज आ रहा है कि करके, आई डोंट नो कहाँ से आवाज आ रहा है, थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं बोलना कोशिश कर रहा हूँ। तो बात ये है, आपने जो बोला, एक बच्चा जब जन्म लेते हैं, एक बच्चा का जेनेटिकल क्वालिटी लेके जन्म होता है। जेनेटिकल लेवल में किसी किसी का जो न्यूरोमस्कुलर जो कोऑर्डिनेशन है, आपका जो सब्जेक्ट है, जो बोल रहे ट्रेनिंग एंड ऑल, सम पीपल, कोई बच्चा उसी एज से वो कुछ जल्दी पकड़ लेते हैं, पकड़ने का कैपेबिलिटी ज्यादा होता है ड्यू टू द जेनेटिकल कैपेबिलिटी, जेनेटिकल थोड़ा एक्सेलेंस है उसको
न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन करने। आप एक बहुत बढ़िया जगह में बोला है, जो बोला साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रेमिंग योर माइंड एट दैट टाइम व्हेन यू आर अंडर प्ले। कोई भी, जैसा आपने बोल रहे थे, मेसी जब चलता है, मेसी का साइकोलॉजी और मेंटल कैपेबिलिटी, ऐसा एक रिसर्च हुआ था। मैं एक पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में गया था, वहां पे वही डिस्कस हो रहे थे। बोल रहे मेसी जब पास देते हैं किसी को, बॉल जब मिलता है, उसका बाद वो दौड़ता है एक पर्टिकुलर पोजीशन में, और उसको मालूम होता है और 2 पास होने के बाद बॉल वहां पे रीच करेगा। इसीलिए मेसी इज अ वेरी इंटेलिजेंट प्लेयर, और आगे से वो पोजीशन में चला जाता है। 2 पास के आगे वो अपना को लेके चला जाता है वो जगह पे। ये सबके संभव नहीं है, आप ट्रेनिंग देके भी नहीं होगा। ये है जेनेटिकल क्वालिटी। तो जेनेटिकल इंटेलिजेंस, जेनेटिकल साइकोलॉजिकल ट्रेट, जेनेटिकल न्यूरोमस्कुलर क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरोमस्कुलर तो बात बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी साइंटिफिकली इवेल्युएटेड when you are giving training. If you can, so there are plenty of sports scientists तो बहुत है, मेरे अंग्रेजी आ जाता है कभी सॉरी। तो स्पोर्ट्स साइंटिस्ट तो बहुत है, और फिजियोलॉजिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है। तो हम लोग भी स्पोर्ट्स मेडिसिन का मेडिकल लेवल में देखता हूँ। तो सब कुछ हम लोग का साथ थोड़ा डिस्कशन ज्यादा होना चाहिए, ये पर्टिकुलर कोचेस और साइंटिफिक ब्लॉक का साइंटिस्ट को साथ। ये पर्टिकुलर आपने कोऑर्डिनेशन बोल रहे हैं, पहला वाला कोऑर्डिनेशन है कोचेस एंड साइंटिस्ट शुड कोऑर्डिनेट विथ ईच अदर टू अपलिफ्ट करना चाहिए प्लेयर को, कौन सा जगह में कैसा करके उसको और भी डेवलपमेंट, उसका इंप्रूवमेंट करने के लिए ये जगह थोड़ा सा खिला है। मैं 29 इयर्स स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में है, और मैं अभी एकेडमी में भी जाता हूँ, फुटबॉल एकेडमी का साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन बहुत जगह में देखा सब अपने अपने फोकस में इतना लग गया है, तो अपना प्ले ग्राउंड का फोकस जो होता है, जो प्लेयर्स के ऊपर पर्सनल उसको आइडेंटिफिकेशन करना चाहिए, उसको ऊपर जो फोकस है वो थोड़ा ढीला पड़ गया। इसीलिए हमारा स्पोर्ट्स आगे नहीं बढ़ सकता है। अदरवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है ये पर्टिकुलर साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड प्रैक्टिकल वर्क, दिस हैड टू वेड विथ ईच अदर। ये वेडिंग नहीं हुआ ठीक से, ये वेडिंग होगा तो और भी डेवलप करेगा। ये नंबर 1 पॉइंट है। और जेनेटिकल तो मैंने बोल दिया, जीन्स में भी कुछ पर्टिकुलर होता है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, आई का साथ मसल कोऑर्डिनेशन, नर्व कोऑर्डिनेशन, जो हमारा हियरिंग पार्ट है, हियरिंग के लिए हियरिंग जो सेंसेशन, जो विजन सेंसेशन, ये सब पर्टिकुलरली जेनेटिकली वी आर गिफ्टेड। जिसको अच्छा होता है वो स्पोर्ट्स में और थोड़ा जो आप ट्रेनिंग देते हैं वो ट्रेनिंग और भी यूटिलाइज कर देगा। उसका यूटिलाइजेशन इसके ऊपर बहुत निर्भर करता है। मैं ऐसा सुना है, जैसा 100 मीटर स्प्रिंट में कभी वो जो स्टार्टिंग में जो पिस्तौल शॉट होता ना, तो जैसा वो जो साउंड देगा तभी ना दौड़ेगा सब स्टार्टिंग पॉइंट से, उसमें किसी किसी का फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स लेट होता है कानों में आवाज जाने में। तो ये कैपेबिलिटी एक एक का डिफरेंट है। उसी लेवल से भी वो सर आपकी आवाज बंद हो गई है, ऑडियो बंद हो गया सर। हाँ, अभी सुनाई दे रहा है? हाँ सर। हाँ, मैं यही बोल रहा था, जो पर्टिकुलर जब स्टार्टिंग फेज में एथलेट्स खड़ा है जो 100 मीटर स्प्रिंट करेगा, जब पिस्तौल का शॉट का जो साउंड आता है, वो साउंड एक एक का हियरिंग परसेप्टिबिलिटी अलग अलग है। वो कोई अर्ली सुनता है तो उसका स्टार्ट जो बोलता है बहुत अच्छा होता है।
और किसी किसी का थोड़ा फ्रैक्शन ऑफ डिफरेंस होता है, स्लो स्टार्ट होता है, रिफ्लेक्स उतना जल्दी काम नहीं करता है. तो आई हियर दिस पर्टिकुलर थिंग with the psychological part and everything in totality, and it had to be properly evaluated also in the scientific particular zone also. Sports scientists should coordinate with the coaches, and coaches should also come for the coordination part. So there should be a proper handshake. एक हैंडशेक नहीं होने से ठीक से नहीं होता है, मैरिज ठीक से नहीं होता है, समझ गए ना. ये मैरिज बड़ा इंपॉर्टेंट है. ये हमारा अभी भी मैं देखता हूँ, मैं एकदम मेरा महसूस है थोड़ा क्लोज होना चाहिए. गेट द बेटर डेवलपमेंट इन स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस. तो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और मसल क्वालिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपका लिगामेंट और जो कनेक्टिव टिश्यू जॉइंट्स है उसका भी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. और आपने बोला है फ्लेक्सिबिलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो ऑल दीज थिंग्स ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल द पर्टिकुलर पार्ट, these are very important. And also the physiological quality, that is also being guided by the genetical, like जैसा लंग का हार्ट का स्ट्रॉन्ग हार्ट है, बहुत ज्यादा ये कर सकता है, लोड लेसिस किसी का जेनेटिकली. और हम लोग क्या करने का है, एक क्वेश्चन आया था, जो फुटबॉल तो खेल होता है, इतना लंबा खेल होता है, लास्ट में कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है. मैं बड़ा इजी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, हमको लगता है उन्होंने वही बोल रहे हैं सुप्रियो जी. तो ये बात है, जब हमारा एरोबिक एनारोबिक कैपेसिटी बढ़ेगा तो उसी टाइम में मेरा बॉडी में एनर्जी भी जाए. অনেক অনেক ধন্যবাদ স্যার আপনাকে. আমাদের এবারে যে সমস্ত অন্যান্য স্পিকাররা আছেন তাদেরগুলো একটু শুনে নেব আমরা. ধন্যবাদ সুব্রত মল্লিক স্যার, আপনাকে প্রণাম নেবেন স্যার. তো এই জায়গাটা কি বলবো একটুখানি, বললে খুব সুবিধা হবে আপনার প্লেয়ার ফিজিক্যাল এডুকেশন স্টুডেন্টসদের. তো আমি এটাই বলতে চাইছি, এটা ঠিক আছে একটা লাইনে বলে দিচ্ছি. তো बात ये है छोटा करते हैं, जो पर्टिकुलर आपको एनर्जी इनबिल्ट देना चाहिए, जो पोटेंशियल एनर्जी आपको बॉडी के अंदर में बढ़ाएंगे. potential energy means your aerobic and anaerobic capacity is potential until it is not being turned to kinetic energy. You have got the energy, then only you can run or you can talk, you can do anything. तो वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाने का आपको ट्रेनिंग देना चाहिए, फिजिकल फिजियोलॉजिकल ट्रेनिंग. और वो जब बढ़ जाएगा तो आपका जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेटिव जो ट्रेनिंग है, उसमें भी ज्यादा टाइम पार्ट ले सकते हैं कोई भी प्लेयर. तो वो भी बहुत ट्रेनिंग में इम्पोर्टेंट है. आई एम टॉकिंग फ्रॉम माय स्पोर्ट्स मेडिसिन टेस्ट. सॉरी आई हैव टेकन अ longer time, but I think I have talked something which is very, very important. Okay. I want to mention one point that Dr. Maulik has mentioned that is very important, the genetic factor, very important factor, especially for the coordinative ability, because it is very much related with the development of the nervous system. Thank you very much. থ্যাংক ইউ স্যার. আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন সম্মানীয় অধ্যাপক দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্যার. স্যারকে আনমিউট করে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করছি. প্রণাম নেবেন স্যার. অধ্যাপক দিলীপ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় স্যার. আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন অধ্যাপক পরিমল দেবনাথ স্যার. স্যার আপনি আনমিউট করে কিছু বলুন, আমাদের এই আলোচনায় ভাগ নিন এবং কিছু বলুন. I have no specific question as such, but I must congratulate the speaker to make it more clear to understand for each of us who are present today. I enriched myself because of his easy language and because of his explanation with suitable examples.
all of us more or less know that the nervous system plays a very important role, a very key role in human movement, and especially muscular movement. The more efficient the nervous system is, it becomes more effective on the part of the player to make a right decision at right point of time. He was giving an example of Messi. Whenever we watch a Messi making a pass, it appears to us that he forces the movement of the ball, he forces the situational environment of the playground, and he foresees that it will ultimately meet what he wants to do. This is because of his efficient nervous system. He can foresee everything. So this is a very important lecture, the role of these coordinative abilities, which plays a very important role to enhance our performance in every sports. And most importantly, he has mentioned that the right time for development of these coordinative abilities is the early age. And if we can add in our coaching system this part, that we will spend some time during the early years to coach or teach the coordinative abilities, ultimately it will give a good dividend. So thank you once again, the speaker, Mr. Umakant, for enlightening us and enriching us. Thank you. Thank you, sir. Abida Malik sir is like what you said that, na? So in Europe or Germany, especially in Leipzig, they already have this concept since 1960, multidisciplinary approach. So you say sports training, the subject sports sciences, all the subjects are born in Leipzig. So when it was like GDR, we say East Germany and West Germany. So lot of coach from side, lot of coach, because I have the list of all the people who has gone from India to get trained there. Lot of coaches from in Kolkata. You have Kuntal Roy sir. They already gone from the University of Leipzig GDR, the sports science. So they are the sports sciences subject. ये वहीं हुआ है, Leipzig में हुआ. Either sports training, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स बायोमैकेनिक्स से ये जितने सब्जेक्ट हैं सारे उस यूनिवर्सिटीज़ में हुआ. वहाँ साइंस के साइकोलॉजी के प्रोफेसर्स कम विद द कोचेस, देन दे टॉक अबाउट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. So that's they are very good in the research part. Then only all these things they come. And they say one important word that is called autogenesis. If you search that term, autogenesis, कि कैसे बर्थ से लेकर डेथ तक का जो पैटर्न है, ग्रोथ पैटर्न, उस ग्रोथ पैटर्न में किस एज ब्रैकेट में किस टाइप की ट्रेनिंग सुटेबल होगी, सो दैट हैव अ मैक्सिमम एडवांटेज ड्यूरिंग. थैंक यू सर. আমাদের ছাত্রছাত্রীদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা আনমিউট করে সঙ্গে কথা বলতে পারো. আমাদের ছাত্রছাত্রীরা যদি কিছু জানতে চাও তোমরা সরাসরি আনমিউট করে স্যারের সঙ্গে কথা বলতে পারো. অশেষ ধন্যবাদ সবাইকে. আমরা আর কোনো প্রশ্নোত্তর পর্ব আজকে আর নিচ্ছি না কেশব স্যার, সরি অনেকটাই সময় হয়ে গেছে. এখন আমরা ধন্যবাদ জ্ঞাপনের দিকে এগোবো. আজকের এই পর্বের একদম সমাপ্তি লগ্নের দিকে এগিয়ে এসেছি. নাও আই উড লাইক টু রিকোয়েস্ট ডক্টর কেশব চন্দ্র গোপ স্যার to give a vote of thanks on the 56th episode of Alapan. Dr. Keshav sir, please. নমস্কার, প্রণাম. সবাইকে যথাযোগ্য স্থানে শুভেচ্ছা, ভালোবাসা ও প্রণাম জানাই এবং আমার বন্ধুবর ডক্টর মৃত্যুঞ্জয় দাসকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন এই গুরু দায়িত্বটি দেওয়ার জন্য. एक ऐसा दायित्व है, किसी का नाम छूट जाए, किसी का नाम नहीं बोलना, ये वर्चुअल मोड में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. इसीलिए पहले मैं सिर झुका के माफी चाहता हूँ. ऐसा छोटा भाई समझ के माफ कर देंगे.
आज हमारे बीच में अभी तक है फॉर्मर वाइस चांसलर अध्यापक आलोक बनर्जी सर, डॉक्टर सुब्रत मौलिक सर, डॉक्टर दिलीप कुमार बंदोपाध्याय सर, अध्यापक परिमल देवनाथ सर, अध्यापक अनिर्बाण मिश्र सर, अध्यापक सैकत चैटर्जी सर, अध्यापक अर्णब सेन सर, अध्यापक सुप्रियो मंडल सर, अध्यापक अपरेश सरकार सर। सर माफी चाहता हूं, आपका आवाज बार बार आ रहा था, इसलिए दो एक बार म्यूट करना पड़ा। हमारा बीच में स्वागत भाषण जिसके द्वारा शुरुआत हुआ था अध्यापक डॉक्टर देव प्रसाद साहू, अध्यक्ष सेवा भारती महाविद्यालय, अध्यापक डॉक्टर आलोक सेन बर्मन सर, डॉक्टर नीतू दत्ता मैम, আমাদের সঙ্গে আছেন সবিতা দিদি ভাই সহ বিভিন্ন विश्वविद्यालय महाविद्यालय से अध्यापक मंडली एवं विद्यार्थी सभी स्टूडेंट सभी को नमस्कार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। आप अपना कीमती समय देके हमारा वर्चुअल मोड में 2 घंटा उपस्थित रहे हैं, इसीलिए सभी को সুস্থ দেহে সুস্থ মন এই নিয়ে আলাপন এই প্রোগ্রামের পক্ষ থেকে তথা আমাদের সেবাভারতী মহাবিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে সবাইকে আরেকবার প্রণাম, শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানাই। आज तक 55 एपिसोड तक जितना भी डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर आए हैं सभी के शुक्रगुजार हूँ हम लोग, ताकि 56 एपिसोड तक हम लोग आ पाए हैं। इसीलिए आप सभी को फिर से एक बार नमन करता हूँ। और जितना भी विद्यार्थी आज इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहे हैं, हमारा महाविद्यालय तथा पश्चिम बांग्ला और पश्चिम बांग्ला से बाहर जो भी विद्यार्थी आए हैं सभी को हमारा महाविद्यालय की ओर से बहुत बहुत शुभकामना एवं प्रेम से आदरपूर्ण शुभेच्छा प्रदान करता हूँ। आज का मुख्य स्पीकर डिस्टिंग्विश्ड स्पीकर उमाकांत सिंह जी, जो आज रोल ऑफ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इन स्पोर्ट्स के रूप में इस टॉपिक के विस्तृत रूप से चर्चा किए हैं, इसीलिए सर को हमारे महाविद्यालय की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं। सर, आप अपना कीमती समय देकर अपना महाविद्यालय के वर्चुअल मोड में आए हैं। हम कभी कोशिश करेंगे आप फिजिकल मोड में हमारा महाविद्यालय आएंगे और अपना महाविद्यालय के बच्चा को कुछ ना कुछ फिजिकल ट्रेनिंग देके और गौरवान्वित करेंगे। इसलिए सर को एक बार अभी से इनवाइट करके रखता हूं। बाद में जरूर 100 एपिसोड में जो हम लोग लेक्चर लेके चल रहा है, सभी स्पीकर को एक बार फिजिकल मोड में इकट्ठा करने का प्रयास हमारा दिल में है। देखते हैं वो कितना हो सके, लेकिन ये हमारा मन में है, प्रयास चल रहा है। उस टाइम और एक बार आपको आपका मूल्यवान वक्तव्य सुनने का मौका मिलेगा, इसीलिए ऐसा एक बार पुनः निमंत्रित करते हुए, और अपरेश सरकार सर को मैं जानता नहीं हूँ, इसीलिए मैं माफी चाहता हूँ सर। आपको पहली वर्चुअल मोड में हम देखे हैं, इसलिए फिर से आपको प्रणाम करता हूँ और आपको इस कार्यक्रम में आने के साथ में जुड़े रहने के लिए, और आप अपना जो कीमती क्वेश्चन पूछे हैं उमाकांत जी को, वो आप उमाकांत जी सर सभी जो क्वेश्चन आए हैं सभी का अच्छा ढंग से आंसर दिए हैं ऐसा समझता हूँ, और हम सभी को कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिला। आज का टॉपिक में जो कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी स्पोर्ट्स के नमस्कार, शुभ रात्रि। Thank you. In addition to that, I will also give thanks to Dr. Tanmoy Saha sir. Sorry sir. To present over there. सभी को
নমস্তে, গুড নাইট। হ্যালো সবার সাথে হ্যালো দেখা হবে আবার 57তম পর্বে নেক্সট আমি কি থার্সডে। একটু বলতে পারি আমার সম্বন্ধে? হ্যাঁ স্যার, বলুন স্যার। আমি অপরেশ সরকার এক্স সাই কোচ, স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া 35 ইয়ার্স ছিলাম, কাবাডি অ্যান্ড খোখো ন্যাশনাল কোচ, এবং আমি 18তে রিটায়ার করেছি। কল্যাণ ইউনিভার্সিটি ফিজিক্যাল এডুকেশনের সাথে বহুদিন ধরে যুক্ত ছিলাম। এছাড়া ভারতবর্ষে বিভিন্ন জায়গায় গেছি। আমার অভিজ্ঞতার কথা আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাইছিলাম। আচ্ছা, ধন্যবাদ স্যার। স্যার স্যার ব্যক্তিগতভাবে আমি আপনাকে চিনি এবং আপনার সাথে আমার পরিচিত হয়েছে আগে। আমি আচ্ছা এই কারণেই যেহেতু ভার্চুয়াল মোডে মানে আপনার এত অডিও হ্যাঁ, সাউন্ড আসছিল যেটা প্রবলেম ক্রিয়েট করছিল, তন্ময় এইজন্য শাহ আমরা আমার স্টুডেন্ট, তন্ময় শাহ আমার স্টুডেন্ট, হি ওয়াজ হ্যাঁ ইন জানি মাই স্যার। কোচিং। Harpreet Okay, sir, sir. if I'm right, आपको मैंने 2017 में आप किड्स में गए थे क्या कोर्स के लिए, 6 वीक सर्टिफिकेट हाँ। कोर्स? You have been 17 in में kids Bhubaneswar for the certificate course 5 days as a coach. I can't remember just now. I have been appointed in the year of 1984 at Kolkata University Physical Education Department, first time. Okay. You told me you're a psych coach. That's why I'm asking. Yes, Sai, NIS. That time name was NIS. Later it was named as a Sai. Okay, sir. অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার অপরেশ স্যারকে। সবাইকে আরো একবার যথাযোগ্য সম্মান, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা আমার জানিয়ে ভালো লাগে।